There's some issue. Just a minute, give me a moment. All right, friends. I think you are looking at the full screen as I have intended. There is some problem in my laptop, but I think you are able to see the full screen as usual, and it is legible to you all. So please let me know first. सब लोगों को पढ़ने वढ़ने में आ रहा है जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली? ओके, तब ठीक है, फाइन फाइन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दिस थिंग यूनिवर्स, अबाउट यूनिवर्स। The class will be brief, dear friends, due to certain personal difficulty, but we will have a fair idea about the basics of this topic. Okay. So let us start. I'll put your chats here. Okay, fine. So we are today going to just examine roughly as to what are the basic ingredients of this topic, okay, and then have a fair idea about them. Please be cautious about the fact that I do not say that this will be an area where you will be getting many questions or so, but once in a while, sometimes it so happens that UPSC and other state commissions, they have the tendency to give questions from, say, about some recent missions, recent discoveries, about recent findings about some missions which were sent to different probes which were sent. So this question can come, but I believe that if in a class of say 1 hour or so, if you can have a basic idea of what the universe is all about, then this is a good investment of time, I believe. Okay, so you should have at least a fair idea of the nature of existence as science looks at it. बाकी तो ठीक है, फिलोसॉफिकली अलग बात है, लेकिन साइंस जिस तरह से समझता पूछता है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. Without that, it does not make sense. Okay, so that's why we are studying this topic, and this will have a superficial touch about the deep concepts which are there in quantum physics and other things. Very, very superficial touch. And my friends from engineering and mathematics background will assist me in this process. If there is anything that you want to add, you immediately raise hand or mention in the chat box. So here we begin. The first thing is the origin of universe. Okay. On this particular aspect, my dear friends, on this aspect, a lot of theories have kept coming. They have kept coming. A lot of theories have kept coming, and ultimately it so seemed that the world is now settling down about theory. But again, some questions were asked कि नहीं ये थ्योरी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऐसे बहुत सारी थ्योरीज जो आती रही हैं, जिसमें से आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी का, है ना. बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा कि यूनिवर्स की उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत समय समय पर आते रहे हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं आती रही हैं. सब हाइपोथेसिस ही हैं एक तरह से, थोड़े थोड़े जो है साइंटिफिक गेसेस हैं. आप ऐसे समझिए इस चीज को
क्योंकि ये टाइम टाइम और स्पेस से रिलेटेड एक घटना की बात हो रही है, और क्योंकि टाइम बीत चुका है और ये टाइम ऐसा बीता है जिसने बहुत कम एविडेंस छोड़े हैं, ठीक है, टाइम स्टैम्प जिसे कहते हैं, सिग्नेचर जिसे कहते हैं, कि हस्ताक्षर जो है या सिग्नेचर बहुत कम छोड़े हैं, तो इसलिए इसका सही सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है। तो जो कुछ भी थोड़े बहुत साक्ष्य उपलब्ध हैं, और अब हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दूर दूर तक ट्रेवल करने के स्पेस में वो एबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एविडेंसेस, ऐसी जगहों से एविडेंसेस कलेक्ट किया जाए जो पहले हमारे रीच से बाहर थे। तो कुल मिलाकर बात यह है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो सबसे अधिक मान्य जो थ्योरी हुई है वो है बिग बैंग थ्योरी। ऑलराइट, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, और बिग बैंग थ्योरी के लिए भी ये चीज काम आएगी, कि ये सारा कहानी इसलिए शुरू हुआ कि समय समय पर जो खगोल शास्त्री हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों के खगोल शास्त्रियों ने अपने टेलीस्कोप वगैरह की मदद से जो ऑब्जर्वेशंस किए, जो नोटिंग्स किए, उससे एक बड़ी ही जो है विलक्षण घटना समझ लीजिए, या विलक्षण चीज सामने आई। उन्होंने क्या नोटिस किया दोस्तों? उन्होंने ये नोटिस किया कि अरे ये कैसे हो रहा है कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर हैं वो और दूर होती चली जा रही है। तो क्या वो गैलेक्सीज ट्रेवल कर रही हैं? क्या अगर कोई चीज दूर होती हुई दिख रही है आपको टेलीस्कोप में से, कि आपसे दूर होती जा रही है, आप नोटिंग करते जा रहे हैं, अभी यहां ऐसा करके, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन के इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं, इन्फरेंस क्या हो सकते हैं, कि क्या ये गैलेक्सी स्पेस में ट्रेवल कर रही है? ऐसा है क्या, गैलेक्सी ट्रेवल कर रही है? या दूसरा इन्फरेंस उसका ये है कि नहीं, ये पूरा स्पेस ही एक्सपैंड कर रहा है, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता जा रहा है, इसलिए ये गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। ऑलराइट, अल्टीमेटली बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद यह चीज सामने आई कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ओके, ठीक है, सो दैट बिकेम द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। फाइन, तो यहां तक तो ठीक है। मजे की बात जो इसमें समझाने लायक है, जल्दी से बता देता हूं, इंटरेस्ट की चीज आपकी ये है कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स का जो पेस है, यही इस बात को तय करता है। आप सोचकर देखिए ना, एक्सपेंशन ऑफ स्पेस अगर बहुत तेजी से हो या बहुत धीमे से हो, उससे कम धीमे से होगा तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यूनिवर्स को एक्सपेंड नहीं करने देगा, कोलैप्स कर जाएगा अपने आप में ही। बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा तो भी जो है सृष्टि का इस प्रकार से निर्माण नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन का जो पेस है, जो उसकी स्पीड है, स्पीड कह लीजिए, चलिए, यूनिवर्स के एक्सपेंड करने की जो स्पीड है, उसके सही सही होने के कारण ही आज सृष्टि और जीवन है यहाँ पर, ठीक है, जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं उसी के कारण है। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ऐसा माना जाए, कल्पना करने करिए कि ऐसा माना जाए कि कोई ऐसा है शिल्पकार जिसने इसको बनाया है, ऐसा मान लीजिए कि कोई शिल्पकार ऐसा है जिसने इस सब चीजों का निर्माण किया है, अगर एक क्षण के लिए कल्पना कर लें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीड गेटिंग एब्सोल्युटली राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ? अगर कोई ईश्वर या ऐसी कोई व्यवस्था है, तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि जैसे लूडो नहीं खेलते हैं हम लोग, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है इस टाइप का, उसके बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, लेकिन आप समझिए, लूडो खेलते हैं तो 6 आ जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं हम लोग, लेकिन जो है कभी कभी यह होता है कि 3 बार 6 आ गया तो 0 हो गया, तो हमारा नहीं माना जाएगा, इस टाइप से, खैर व्हाटएवर। तो डायस जो है, डायस को जब हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें 6 बार जो है, एक बार में 6 आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सिंपल सी बात है। जब 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा है उसमें, तो 6 में से 1 उसके आने की भी चांस है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, 4, 5, 6 आ सकता है। लेकिन ध्यान से समझो हमारी बात, अगर हम ये अलग थ्योरी हो गई, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम क्या गेस कर सकते हैं इस चीज को कि अगली बार क्या आएगा। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग दैट द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 5 टाइम्स आपका 6 ही आएगा, इसका चांस कितना है सही होने का, मैं ये कह रहा हूं, इस बात का चांस सही होने का कितना है, तब फिर वो गुणा होता जाएगा। अगर मैं गेस करने पे आऊं कि आपका इस बार 6 आएगा, उसके अगले बार भी 6 आएगा,
तब 1/6 इंटू 1/6 1/36 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि 36 बार में एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो कहा है वो सही हो जाए। आप समझे मेरी बात? इसी प्रकार जो है बढ़ता जाएगा, 6 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे कि लगातार इतने बार तुम्हारा आएगा, डिफिकल्टी उतनी बढ़ती जाएगी, उसके चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। ये समझ में आता है दिमाग में? सिंपल सी चीज समझ में आती है कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसका नंबर जितना बढ़ाते जाएंगे उसका पॉसिबिलिटी उतना ही कम होता जाएगा कि अरे नहीं नहीं इतने बार थोड़ा हो जाएगा लगातार, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। तो व्हाट इज द चांस? अब अगर मैं आपको उन दोनों को कंपेयर करके बताना चाहूं रफ आइडिया के लिए कि इस बात का लूडो के टर्म्स में अगर समझा जाए कि क्या चांस है कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन स्पीड है वो एकदम सही हो, न ज्यादा न कम, तो उस चांस की प्रोबेबिलिटी आती है दोस्तों 1 in 10⁵ ये समझते हो? 10⁵ का मतलब समझ गए? 10 के ऊपर 55। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द यूनिवर्स एक्सपेंशन स्पीड राइट। ये स्थिति है, ठीक है? तो आप इस बात को, सिर्फ एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि दैट्स द प्रोबेबिलिटी कि यूनिवर्स का स्पीड वही होता जो आज है। लेकिन इसका एक काउंटर लॉजिक है, हालांकि ये लॉजिक फिलोसफी की क्लास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तेज रखो तो अच्छा रहेगा भाई। उसका काउंटर लॉजिक ये है कि लूडो में तो हमको पता लग जाता है, लूडो में तो क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उन सारी घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं, ये पहला बार में आया, दूसरा में आया, तीसरे में आया, चौथा में आया। लेकिन यूनिवर्स में क्या ये मियर चांस नहीं हो सकता है? तो बोला चांस कैसे होगा यार, 1 इंटू 10⁵ में एक बार हुआ और हम पैदा हो गए, ये चांस थोड़े हो सकता है। तो बोला अगर हुआ भी चांस तो तुम्हें पता कैसे लगेगा, क्योंकि बाकी टाइम पे तो तुम पैदा नहीं हो सकते थे ना सृष्टि। आप समझे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? समझे कि नहीं समझे? लूडो में तो सारी घटना आपके सामने है, टाइम के विद इन द स्पैन आप देख के बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, नहीं है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन आप उसी सर्कुलर आर्गुमेंट जिसे कहते हैं कि आप तभी पैदा हो पाएंगे ये बहस करने के लिए जब वो इक्वेशन सही बैठा हो यूनिवर्स का। तो आपको क्या पता कि इसके पहले कई बार फेल हो चुका है या नहीं? डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि तब तो आपका जन्म ही नहीं हुआ होगा ना, ये तो रिकॉर्ड में ही नहीं है ना फिर वो। पर यस मैन, सो एवरीबडी मस्ट बी गेटिंग इट। ये एक आर्ग्यूमेंट है, छोड़ दीजिए इसे, बस सिर्फ एक इंटरेस्टिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, लॉजिक थोड़ा शार्प रखना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो यूनिवर्स एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जो है, तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जो प्रिज्यूम करती है वो उसके प्रिजम्पशन नहीं, जो ऑब्जर्वेशंस थे वो यही थे 1920s 30s में, जब भी ये सब जो बल पकड़ा अच्छे से कि नहीं नहीं ये एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, और अगर एक्सपैंड कर रहा है तो फिर ये कहां से शुरू हुआ होगा। ये बात है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो कभी कॉन्ट्रैक्शन रहा होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। कभी उसका जो मूल स्वरूप है वो क्या रहा होगा, इस बात पर प्रश्न उठा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए का मतलब देखो, जो चीजें इस प्रकृति की होती हैं जिनको आप लेबोरेटरी में नहीं प्रूव कर सकते, जिनको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आप प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते, जो इस प्रोपोर्शन की चीजें होती हैं, उनके लिए थ्योरीज दी जाती हैं। जो थ्योरी ज्यादातर चीजों को एक्सप्लेन कर ले जाए कि ये घटना क्यों हो रही है, अच्छा तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा अगर आप ये करें तो फिर वो क्यों हो रहा है, जो ज्यादातर घटनाओं को एक्सप्लेन कर ले जाती है उसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मान ली जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है, सही गलत नहीं होता है। ठीक, उसमें सही गलत नहीं होता है। कोई 80% तक एक्सप्लेन कर पा रहा है, 2-4 घटनाएं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, कोई और नया आया तो उसने 2 घटना और एक्सप्लेन कर दी। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी की बात है। एक्सेप्टेबिलिटी उन थ्योरीज की होती है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली ज्यादातर फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सके। ये भी समझ गए? तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, थेसिस नहीं कहते हैं इसे, हाइपोथेसिस कहते हैं। थेसिस का मतलब क्या होता था, जो पुराने जमाने में जो रोमन ग्रीक टाइप के जो स्कॉलरशिप उस समय हुआ करती थी, जो विद्वता हुआ करती थी, उसमें राजा के दरबार में जो 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 काम लोगों के, जो वर्क मतलब रिसर्च वर्क या कोई भी इस तरह का वर्क जो वाकई अपने आप में कंप्लीट होता था, जो साक्ष्यों के साथ होता था, प्रमाण के साथ होता था और उसकी तार्किक व्याख्या की जा सकती थी, उसे राजा के सामने टेबल के ऊपर रखने का मौका मिलता था कि टेबल के ऊपर रखे, राजा उसे देख सकें।
जो एम्परर है या जो भी रूलर है वो उसे देख सके, उतना इज्जत मिलता था। बाकी जो अनप्रूव्ड थ्योरम्स होते थे या जिनको अभी भी प्रूव करना बाकी होता था, जिनमें कोई लॉजिकल फैलेसी रह जाती थी, उनको टेबल के नीचे रखा जाता था कि अभी ये इस लेवल पे नहीं आए हैं, काम चालू है इस पे। तो वो हाइपो मतलब नीचे, थीसिस मतलब टेबल के नीचे, कुल मिलाकर बात नीचे रखे जाने वाली जो टेबल, वहां से इसका नाम है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि यस दिस इज एन अटेम्प्ट, अ थ्योरी टू एक्सप्लेन समथिंग, बट देयर आर सर्टेन लैक्यूना इन दिस थ्योरी, देयर आर सर्टेन लैक्यूना, एंड कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ को नहीं कर पा रहा। तो यूनिवर्स के साथ यही होता है, क्योंकि आप इसे प्रयोगशाला में कोई चीज सिद्ध करना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। वो समय बीत चुका है, और स्पेस जो है वो ह्यूमंगस है, वो लिमिटलेस टाइप का स्पेस। तो कुल मिलाकर कहानी ये है। तो थ्योरी दी गई, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है जो, और यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी है वो कहलाती है द बिग बैंग थ्योरी। हम पहले वो देख लेते हैं कि क्या है बिग बैंग थ्योरी, जल्दी से समझ लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है दोस्तों कि देयर वाज अ पॉइंट कॉल्ड, एंड दे कॉल्ड इट सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कहा गया कि एक ऐसा पॉइंट था। तो बोला पॉइंट क्या था, मतलब पेपर पे जो पॉइंट बना दिया, ऐसा पॉइंट आप क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ यह है, एक ऐसी सब एटॉमिक, सूक्ष्म से सूक्ष्म के से भी ज्यादा सूक्ष्मतर, एक ऐसा यानी परमाणु से भी छोटी एक ऐसी इकाई जैसी, जहां पर सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी का अर्थ क्या हुआ? सिंगुलैरिटी का मतलब हुआ जहां पर डुअलिटी नहीं रह जाए, दो नहीं रह जाए। सिंगुलैरिटी का अर्थ हुआ कि जहां टाइम और स्पेस दोनों आपस में अपनी अपनी बाउंड्रीज, अपने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और सिंगुलैरिटी उनमें हो जाती है। टाइम और स्पेस जब अपने खुद के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लूज कर दें, जहां पर कोई मेजरमेंट काम न करे, जहां पे जो है इनफाइनाइट हो जाए वो चीज, ठीक है। तो टाइम और स्पेस की जो आपस में इस तरह का मिलन, जहां पर फिजिक्स के ज्यादातर सब के सब नियम फेल हो जाएं, टाइम और स्पेस के ही को ही एक कांस्टेंट मानकर तो फिजिक्स के सारे नियम चलते हैं भाई, है कि नहीं है? एक कांस्टेंट है ना, ये अपनी कांस्टेंट मानते हैं, और फिर जो है कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करते हैं, रूल्स बनते हैं कि भाई इसके इसके हिसाब से बनता है बाकी रूल। तो अगर ऐसा ना हो, ऐसी एक जगह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्पेस खुद ही इसमें समाया जा रहा है। तो टाइम और स्पेस की जो एक ब्लेंड है, जहां पर कर्वेचर जो है, टाइम और स्पेस कहते हैं ना ऐसे चल रहा है, तो जो कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाए, यानी कहां टाइम और कहां स्पेस ये पता ना लगे, उसको सिंगुलैरिटी कहा गया। दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, और आसान शब्द में समझिए कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो इसका एक लॉजिकल एक्स्ट्रापोलेशन क्या होगा? आप तार्किक रूप से इसको पीछे ले जाइए समय में। तो अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो यानी किसी एक ऐसी चीज से शुरू हुआ है जो बहुत छोटी थी, तभी तो एक्सपैंड कर रहा है। वो जो छोटी चीज है वो ये है, उन्होंने कहा कि सिंगुलैरिटी है, ठीक है। सिंगुलैरिटी में की जो प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताऊं, तो सिंगुलैरिटी का अर्थ ये हुआ, सिंपल सी बात समझिए, कि जहां पर टाइम और स्पेस आपस में ऐसे मिल जाएंगे, इतना जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे, अपनी आइडेंटिटीज लूज कर देंगे, तो उसमें होगा क्या? उस पर्टिकुलर चीज की जो डेंसिटी है, ठीक है, जो सिंगुलैरिटी है उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। घनत्व तो उसका जो नापने में ना, टाइम स्पेस सबसे बियॉन्ड है, नापने में ना हो, वैसा इनफाइनाइट डेंसिटी उसकी हो जाती है। तो इनफाइनाइट डेंसिटी का अर्थ क्या है, उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ? उसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि जो मैटर है, मैटर जो है वो इतना डेंस, इतना कॉन्डेंस्ड हो गया है कि उसके अंदर की जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसका, क्योंकि उसी की वजह से वो हुआ है। एक थ्योरी ये भी है कि ये काहे ऐसा हुआ, तो कहा, जिसमें हमारे भारत के एक वैज्ञानिक का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आपने सुना होगा नाम जीएस में। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर सूर्य, जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो मास है, द्रव्यमान है, उसका 1.39 टाइम्स कोई हो जाएगा, 1.39 टाइम्स अगर हो जाए, चंद्रशेखर लिमिट इसी को बोलते हैं कि 1.3 टाइम्स उसका मास हो जाए, ऐसा कांस्टेंट कुछ दिया था, तो वो उसके ग्रेविटेशनल पुल, उसकी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पुल ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएगा, वो खुद में कोलैप्स हो जाएगा। और जब खुद में कोलैप्स हो जाएगा तो कोलैप्स होके क्या बनेगा? वही क्वेश्चन है, ब्लैक होल। आप सुने होंगे, ब्लैक होल टाइप की चीजें सुने होंगे। तो
सिंगुलैरिटी का अर्थ ये हुआ कि टाइम और स्पेस जहां पर अपनी आइडेंटिटी, अपने एट्रीब्यूट्स लूज कर जाए, फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाए, डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगर लाइट, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो लाइट का जो स्पीड है उससे भी तेज हो, क्योंकि ग्रेविटी को समय मिलना चाहिए ना, कहते हैं कि ग्रेविटी जब किसी को इन्फ्लुएंस तब करती है उसे उतना टाइम मिलना चाहिए इन्फ्लुएंस करने भर का, लेकिन जब इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी हो कि लाइट के स्पीड से भी आगे चले तो लाइट को भी खींच लेगा, वो लाइट को स्केप नहीं करने देगा। ये है पूरी कहानी, सिंपल एकदम। इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करें, हमारा फील्ड ही नहीं है, हम कैसे समझ पाएंगे इसको। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि सिंगुलैरिटी का अर्थ हुआ थ्योरी में एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे यूनिवर्स की शुरुआत हुई होगी। यूनिवर्स की शुरुआत इसलिए, अब एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि कैसे। तो बोला कि देखिए एक्सपैंड हो रहा है, इसी को पीछे करते चले जाते हैं समय में, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्टेड सा पॉइंट रहा होगा, और वो कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट ऑब्वियसली उसी से सब कुछ बना है। तो सबसे छोटा क्या है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला एटम, मॉलिक्यूल, यही सब तो है। तो इनसे भी बहुत छोटा रहा होगा वो चीज, क्योंकि उससे ये बने हैं ना, तो इनसे भी बहुत छोटा रहा होगा जिस जो। तो फिर बोला कि जब इतना छोटा था तो फिर इस स्वरूप में आया कैसे। बोला हाँ, ये है बिग बैंग थ्योरी, कि उसी में बिग बैंग हुआ, इसी में बिग बैंग हुआ, और यूनिवर्स जो है वो कॉस्मिक इन्फ्लेशन के द्वारा और फिर एक्सपैंड कर गया, और अभी तक वही चल रहा है, ये हाइपोथेसिस कहती है। यहां तक समझ पाए या नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। जितने सरल शब्दों में कहा जा सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक, ये क्लियर है एकदम से बात, सिंगुलैरिटी की बात है, कोई बहुत ऐसा तो कठिन हमको लगा नहीं। उसके टेक्निकलिटी में जाएंगे तो हमको जाने की जरूरत है नहीं। तो इसी सिंगुलैरिटी में आप देखिए कि इसमें बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। ठीक, एक्सप्लोजन जब हुआ तो अभी एक सेकेंड भी नहीं हुआ है, ध्यान रखें इस बात को, यहां पर टाइम लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 10⁻⁻³ सेकेंड तक का अपने को अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके पहले क्या था ये गेस है, और भी ज्यादा मतलब जो है जैसे कहते हैं वेग गेस है। साइंटिस्ट जहां तक की बात थ्योरी से, लॉजिक से, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से लगा पा रहे हैं वो 10⁻⁻32 सेकेंड तक का है। उससे पहले जो जीरो पॉइंट था, भाई समय जब बिग बैंग हुआ उसको जीरो मान के आगे गिना जाए, अब 1 सेकेंड हो गया, अब 2 सेकेंड हो गया, अब 4 सेकेंड हो गया, अब 100 साल हो गए, ऐसे ही तो गिनेंगे कि यहां पर हुआ भाई बिग बैंग। तो बिग बैंग अगर जीरो माना जाए तो जीरो से 10⁻, जो जिसे कहते हैं कि -32 सेकेंड तक कोई हवाला नहीं, यानी 1 सेकेंड के पहले, समझ ले 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा हुआ वो, उसके पहले का कहते हैं कि ना वो नोन है और ना वो नोएबल, जिसे कहते हैं नोएबल है, ना वो जाना जा सकता है, उसके बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल गेस किए जा सकते हैं, दैट इज ऑल। इससे इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। तो भाई पहला जो स्टेप आप कह लीजिए, बिग बैंग के बाद जो पहला स्टेप थ्योरी प्रपोज करती है वो कहती है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं बच्चे से, फूलना। ठीक है, उस कॉस्मिक इन्फ्लेशन मतलब जो छोटा था उसमें बिग बैंग हुआ और वो फूलना शुरू हुआ। ठीक, दूसरा जो स्टेप कहा जाता है वो हुआ, पार्टिकल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, जब वो बहुत ही छोटा था, डेंसिटी इनफाइनाइट है उसकी, ठीक है, दगा वो बिग बैंग हुआ, उसमें कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू हुआ, तो जो स्पेस है वो किस चीज से भरेगा, स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स बनेंगे ना, पार्टिकल्स बनने पड़ेंगे ना उसमें। जो अगर आज यहां तक हम पहुंच गए हैं, लैपटॉप बन जा रहा है, ये बन जा रहा है, वो बन जा रहा है, धरती बन जा रही है, इतने सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, किस चीज से बनेगा, मैटर से ना। तो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल जेनेसिस होगी, पार्टिकल्स का निर्माण होगा। ठीक है, टाइमलाइन यहां चलती जा रही है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में पार्टिकल्स का निर्माण वगैरह प्रारंभ हो गया। फिर साइंटिस्ट ने 2 तरह का मैटर बताया हुआ है। ठीक है, 2 तरह का मैटर क्या है, ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर। जो पता चल जाए, ऐसे समझ लो बहुत ही साधारण भाषा में, कि जो आंख के सामने दिख के और समझ के या किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाला मैटर है, इसकी वजह से ये इस चीज का निर्माण हुआ है, वो अपना ऑर्डिनरी मैटर हो गया, जो सबको मालूम है। जो नहीं पता चल रहा है, एक तरह से बहुत ही लेमैन भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, वो डार्क मैटर है। ठीक है, डार्क का मतलब जिस पर अज्ञान, हमें नहीं ज्ञान है उसका, वो डार्क मैटर या डार्क जो है वो एनर्जी का स्वरूप होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी मैटर टू लाइट एंड डार्क मैटर टू स्ट्रक्चर। एक चीज से लाइट के साथ एसोसिएट हो गया
और दूसरा डार्क मैटर जो है वो स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने में लग गया। ठीक, फिर रिकॉम्बिनेशन, रीआयोनाइजेशन, इस तरह की घटनाएं होंगी। और वही वो समय है, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कि वही वो टाइम है जिसमें, इसको समझा देता हूं मैं ठीक से, ताकि इस पर सवाल आ सकता है, खाली पूछेगा, नाम पूछेगा और आप, क्योंकि बहुत इस पर चर्चा हो रही है इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जो आप इसको ऐसे देखिए, एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि अगर होली हो, चलो ऐसे देख लो एग्जाम्पल, बहुत सरल एग्जाम्पल हम देते हैं कि होली के बाद बहुत समय तक अगर होली हुई है कहीं गली मोहल्ले से, तो बहुत समय तक अगर उसका धुलाई पुछाई नहीं किया जाए, तो जैसे गुब्बारा उब्बारा भर के मारता है, ठीक है, उस तरह की चीज है, तो दीवार पे उसका निशान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, उसका दीवार पे निशान मिल जाएगा कुछ ना कुछ। या दीपावली के बाद अगर एक्सप्लोजन कहीं हुआ हुआ है, तो आप देखेंगे कि धुंध छा जाती है कि नहीं छा जाती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जब प्रोटॉन्स वगैरह का, इन सब का निर्माण प्रारंभ हुआ इस जगह पे, जब प्रोटॉन्स वगैरह बनने लगे, यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह जब सब सिंथेसाइज होने लगे, बनने लगे, तब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एमिट हुई, एक तरंग एमिट हुई। और तरंग कहां जाएगी, ये तो आप जानते ही हो ना। जैसे हमारे यहाँ गांव में नहीं कहते हैं कि जो है शब्द सोच समझ के बोलो, शब्द जो है रहता है वो यूनिवर्स, कहीं नष्ट नहीं होता, सृष्टि में रहता है वो शब्द, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, यही कहते हैं हम। इसी प्रकार जो यहाँ पर रेडिएशन, यहाँ से जो वेव्स निकली, वो अभी भी इसी यूनिवर्स में ट्रैप्ड हैं, मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो रिलीज हुआ था उस समय, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं इसको, MBR। तो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो उस समय रिलीज हुआ था जब ये सब जेनेसिस चल रही थी, उसकी स्टडी कर लें आज हम, जो आज भी वो कहीं ट्रैप्ड है, कहीं जाके बाहर जा रहा था लेकिन उसके बाद नहीं क्रॉस कर पाया समझो, तो वहीं पे उस जोन में अभी भी मौजूद है। तो यदि उसकी स्टडी कर ली जाए तो हीट सिग्नेचर्स, टेम्परेचर सिग्नेचर्स उससे पता चल जाएंगे कि उस समय, आप तो जानते ही हैं, अलग अलग तरह की तरंगे अपना जो है टेम्परेचर के आधार पे, कोई जो है लाल रंग का दिख रहा है जो है सितारा, कोई इस रंग का दिख रहा है। मोमबत्ती में भी अलग अलग तरह के रंग होते हैं, है कि नहीं है, उसी लौ में अलग अलग तरह के रंग होते हैं, अलग अलग तरह के टेम्परेचर पे जब जलती है तो रंग अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं, वही एनालॉजी है कि उस माइक्रोवेव रेडिएशन का अगर आज स्टडी कर लिया जाए तो यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे क्लू मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी है, बहुत कुछ पता चला है उसके बारे में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वगैरह के बारे में। तो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो क्या, एक मिनट रुको, चैट बॉक्स कहाँ गया, बैक टू मीटिंग, नहीं ना, हाँ अच्छा, मैं समझा कोई पूछ रहा है, यहां तक बात समझ गए। इस शब्द का हो सकता है कहीं जिक्र आ जाए कि व्हाट इज माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, किचन में बनाने वाला सामान का एक वो है, फलाने का वो है, या यूनिवर्स की किसी स्टडी से रिलेटेड है, तो आप जाने रहिएगा कि माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दरअसल वो हाथों के जो छापा नहीं मार देते हैं हाथ में लगा के जब घर बनता है या पुताई होती, तो वो हस्ताक्षर हैं, वो उस समय के हस्ताक्षर हैं जब यूनिवर्स, जो थ्योरी अभी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से, जब यूनिवर्स कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद जब प्रोटॉन वगैरह का निर्माण शुरू हुआ, तो जो वेव्स रिलीज हुई थी उस समय, वो अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। उनको, उन्हीं को कहा जाता है माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो क्योंकि वो बैकग्राउंड है। ठीक है, यहां तक समझ गए। फिर क्या हुआ भाई, और आगे क्या हुआ, जो डार्क एजेस कहा जाता है इनको, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ऑर्डिनरी मैटर जो है वो फॉल्स इनटू स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय डार्क मैटर। तो यहां पर बात हुई थी कि ये अपना स्ट्रक्चर बनाने में लग गया था, इसने स्ट्रक्चर यहां तक निर्माण कर लिया। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है, आपको बहुत अच्छे से जान लीजिए, एक ही लाइन में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रोटॉन्स का बनना, न्यूक्लियर फ्यूजन होना, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है वो रुक जाना, ये पूरी घटना है। मैं आपको बताऊं, यहां से लेकर एक बहुत सरल शब्दों में से समझें आप। देखिए यहां क्या हुआ है, सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी फैलने लगा सब कुछ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन होगा तो उसमें क्या भरा जाएगा, क्या होगा, तो पार्टिकल्स का जेनेसिस हुआ। ठीक है, एक सेकेंड के अंदर अंदर पार्टिकल्स का सारा जेनेसिस वगैरह सब हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, प्रोटॉन का बनना, न्यूक्लियस का बनना, न्यूक्लियर फ्यूजन होना, न्यूक्लियर फ्यूजन का रुक जाना, ये सब घटना उसी दौरान हो गई, इतनी तेजी से ये चीज हुई।
ये कहने का अर्थ है, ठीक है। उसके बाद डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर ने अपना अपना निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया में अंततः क्या हुआ कि जो डार्क मैटर के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए उसमें ऑर्डिनरी मैटर ने जगह लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। ये थ्योरी कहती है इसी समय यही वो दौरान है, इसी समय कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन रिलीज हुआ, जो कि इस पूरी घटना के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आज भी। बस इससे ज्यादा अभी टेक्निकल आप ना समझे, ठीक है। और यहां कहीं आकर फिर न्यूट्रल हाइड्रोजन का जब निर्माण हुआ, तो आप तो जानते ही हैं कि ज्यादातर चीज हाइड्रोजन और हीलियम से ही सब कुछ बना हुआ है। तो हाइड्रोजन का निर्माण जब यहाँ पर होगा, इसकी टाइमलाइन अलग से बना दी जाएगी, अलग अलग टाइमलाइन अलग अलग जगह, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इसको बस आप सिर्फ प्रोसेस समझ लीजिए, टाइमलाइन में बहुत परेशान मत होइए, वो एक्यूरेटली बता दी जाएगी। और इसके बाद से फिर शुरुआत होती है गैलेक्सीज का निर्माण वगैरह, ठीक है। इसके बाद शुरुआत होती है कि गैलेक्सीज वगैरह बनना, स्टार्स और गैलेक्सीज उसके बाद बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और गैलेक्सीज बनती हैं, स्टार्स बनते हैं, उनकी गैलेक्सीज अपनी बनती हैं, और फिर सोलर सिस्टम बनता है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बनते हैं। इस तरह से घटना होती है। यहां तक आप समझ गए? कहानी की तरह जान लीजिए, बैकग्राउंड में रहे दिमाग में, बस इससे संबंधित कोई फैक्ट या टेक्निकल पॉइंट जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आप जाने रहिए कि इतने सारे, ये जो मैं बोल गया कि ये डार्क मैटर ऐसा बनाता है, ऑर्डिनरी मैटर ऐसा बनाता है, उसका कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि जब ये इतना छोटा था, एक सिंगुलैरिटी थी, और फिर वो एक्सपैंड हुआ, तो ये जो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ क्या एग्जैक्टली? हाईली डेंस सिंगुलैरिटी का एनर्जी के रूप में बदल के बिग बैंग करना, यही तो हुआ घुमा के। तो इस प्रोसेस में इतना सारा मैटर कहां से आ गया, यह प्रश्न है। उसी से आया है, अल्टीमेटली उसी से डराइव हुआ है। तो गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इतने सारे हमारे जैसे तमाम गैलेक्सीज हमारे जैसे जो है, और इतने यूनिवर्स कहे जाते हैं कि कोई अंत तो है नहीं भाई, इतना मैटर कहां से आया? ठीक है, इस चीज को भी तो एक्सप्लेन होना चाहिए, इतना मैटर कहां से आ गया। एनर्जी वगैरह तो बता दिया आपने कि इतना डेंसिटी इनफाइनाइट था, ये था, दब गया, तो एनर्जी है भाई। मैटर कहां से बन गया इतना? इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस में जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये है कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट हो गई वो। और यही नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था ना, मैटर और एनर्जी का आपस का कैसे कन्वर्जन, कैसे संबंध हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना भाई, कि इतना मैटर कहां से आया। तो और आप कहते हैं कि मैटर कहां से आएगा, यहां तो है नहीं कहीं शुरुआत में, तो ये जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो गई होगी। तो फिर अब आप ये भी तो बताइए कि एनर्जी कैसे मैटर में, क्या मैटर और एनर्जी आपस में जो है वो चेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है? क्या मैटर एनर्जी में और मैटर एनर्जी मैटर में बदल सकता है? ये प्रश्न उठेगा, और उसके लिए फिर थ्योरीज दी गई। अब आप सब जानते ही हैं, E=mc² वगैरह, जो ये इसी पर तो है। आप समझ में आए? आप मुझे लगता है कि जो इस फील्ड के मेरे जैसे लोग हैं, जो इस फील्ड के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, वो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब इक्वेशन कहां से आए, क्यों आए। तो इसलिए ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी गई, टाइम और स्पेस कैसे आपस में स्थित हैं, एनर्जी कैसे मैटर में, तो घूम घुमा के ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिवर्स के रिगार्डिंग। दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि मैटर और एनर्जी आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या ये इंटरकन्वर्टेबल है, और नंबर दो कि ये टाइम और स्पेस की दशा और दिशा क्या है। ये दो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जो मैं समझ पाया, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हम समझ गए। तो ये थ्योरी मान ली जाए भाई, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसको लेकर। तो ये थ्योरी क्या सर्वमान्य है? नहीं, इस थ्योरी को बहुत ही स्ट्रांगली अब रिसेंटली पिछले 10-20 साल में चैलेंज किया गया, 30-40 साल में चैलेंज कर दिया गया है। और वो चैलेंज ये है, स्टीफन हॉकिंग साहब ने इसको सपोर्ट किया, कुछ अपना खुद का जो है वो एक जिसे कहते हैं थ्योरी विधि, उसको इम्प्रूव किया जिसे कहते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज हैं, रिसर्च है, वो इसे चैलेंज करती है। जानते हैं कैसे? बहुत ही आसान तरीके से हम समझ जाएंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं, वो पूछते हैं, वो इस चीज को पूछ रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं
कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपोनेंशियली, इन्फ्लेशन एक्सपोनेंशियली होता है। देखो एक्सपोनेंशियली हो रहा है कि नहीं, ऐसे एक एक करके नहीं होगा। यानी जैसे मान लो 10 हैं हम, तो 10 से 11 हुए, 11 से 12 हुए, ऐसे नहीं होता है। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। समझ गए मेरी बात? एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? ऐसे इंक्रीमेंटली नहीं इंक्रीज होता है, उसका नंबर डबल होता जाता है, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा है, अब सुनो, जो अगला जो प्रॉब्लम है वो सुनिए आप। यदि ये बात ऐसी, बहुत बहुत कॉमन सेंस है, देखो इतना बड़ा थ्योरी और इतना बड़ा ऑब्जेक्शन, लेकिन हम उसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये बात सही है आपकी कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, अगर ये बात सही है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे चलता है, तो फिर इस समय जो भी है, ध्यान से सुनना बात को, ये मिस कर जाओगे। इस समय जो भी है उससे बैक कैलकुलेशन कर दे, हम रिवर्स कैलकुलेशन कर दे, तो वहां तक पहुंच जाएंगे। क्या ये बात समझ में आता है तुम्हारे? कि अगर हमको वो रेशियो मालूम है कि इतने फैक्टर से ये डबल होता जाता है, तो हम उसको वापस करते जाएं अंडर रूट टाइप से, कहने के लिए कह रहा हूं, हाफ करते जाएं, हाफ करते, चाहे वो लॉगरिथमिक हो रहा हो, चाहे जो है ज्योमेट्रिक हो रहा हो, जिस भी तरह से हो रहा है, अगर हमें फॉर्मूला मालूम है कि ये इतने टाइम में इतना हो जाता है, तो हम उससे वापस जो है इनिशियल पॉइंट तक कैलकुलेशन करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, ध्यान से सुनो और बताओ जवाब। अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है और उसके आधा करते चले जाएं, ठीक है, माना कि अभी जो है वो, अभी उसकी संख्या 320 है, माना समझने के लिए कि अभी उसकी संख्या 320 है। अब 320 का आधा कर दीजिए, तो कुछ कुछ समय पहले वो 160 रहा होगा। उससे और पीछे चले जाइए, कितना रहा होगा? 80। 80 से और पीछे चले जाइए, 40 रहा होगा। 40 से और पीछे चलते चले जाइए, 20। 20 से पीछे जाइए, 10। समझ रहे हैं? 10 का आधा कर दीजिए और कर दीजिए, ठीक है, 5, 5 का आधा, ऐसे करते चले जाइए। क्या इस रिडक्शन में, ये जो रिडक्टिव कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसमें कभी जीरो आएगा? यह है मेरा सवाल। सब लोग समझ गए होंगे इसमें? कोई बताओ, कुछ कठिन बता रहे हो तो बताओ, हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ। ये तो कोई आर्ट साइड, साइंस साइड कहीं का भी हो, तो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि अगर ये बात सही है कि ये डबल वाला फॉर्मूला है, तो हम हाफ करते जाएं। तो कभी भी हाफ करते जाओ किसी भी नंबर को, तो क्या कभी जीरो आएगा? जीरो आने की पॉसिबिलिटी तो तभी है ना जब इंक्रीमेंटल हुआ हो, कि आज हम 12 थे, फिर 11 थे, फिर 10 थे, फिर 9 थे, हाँ तब जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर डबल वाला सिस्टम है तो वो तो कभी, क्या कभी जीरो हो सकता है? चाहे जितना छोटा हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होगा भाई, नहीं होगा जीरो। हाँ, इट कैन बी नेग्लिजिबल बट इट कैन नेवर बी जीरो। और अगर वो जीरो नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, तो फिर सिंगुलैरिटी संभव है? सिंगुलैरिटी तो यही कर रही है ना कि क्योंकि ये जीरो हो जाता है इसलिए बाकी सब इनफाइनाइट हो जाता है, तबे तो इन्फिनिटी होगा बाकी। आप समझ गए बात? ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल जो है लोग पॉइंट आउट करते हैं, बहुत ज्यादा हमको भी नहीं समझ में आता भाई, हम उस फील्ड के नहीं है, लेकिन इतना समझ गए कि पॉइंट क्या उठाया जा रहा है। ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन, कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं बैक। अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर बैक कैलकुलेशन हम करेंगे उसे, तो फिर क्या कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर सिंगुलरिटी कैसे एग्जिस्ट करती थी? आप कैसे कह रहे हैं कि सिंगुलरिटी? नंबर एक, ये तो सिर्फ कॉपी किताब लेके बैठने वाली बात हो गई ना, कि कोई भी निरहु गुरहु हमारे आपके जैसा भी है तो दिमाग लगा सकता है कि तो पीछे जाएंगे तो जीरो नहीं आएगा। सिर्फ बात थ्योरी तक नहीं रुकी हुई है, इसके साइंटिफिक एविडेंसेस भी कुछ हैं कि यदि सिंगुलरिटी हुई होती तो इस लेवल के टेम्परेचर्स हुए होते पास्ट में। लेकिन आज जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं साइंटिफिक मेथड से, तो जो हीट सिग्नेचर्स, जो एविडेंस हमें मिलते हैं, वो उतना टेम्परेचर नहीं था जितना इस थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए। इस इस सिंगुलरिटी को एक्सपैंड कर देने के लिए, बैंग हो जाने के लिए और यूनिवर्स बना देने के लिए जिस लेवल तक टेम्परेचर्स बढ़ने चाहिए थे, वो टेम्परेचर्स नहीं बढ़े हैं, ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं।
ये नहीं एक्सप्लेन हो रहा है, यहां से आगे का एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का चीज जितना आपका गेस है उतना हमारा ही है, यानी हम दोनों का बात सही निकल सकता है। आप कह रहे हैं सिंगुलरिटी था, हम कह रहे हैं नहीं था, दोनों की बात सही निकल सकता है भाई, इस पे कोई श्योरिटी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ 10⁻−32 तक ठीक है, कि ये बात ठीक है, यहां से यहां तक ये जोड़ जा रहा है, लेकिन ये यहां से जीरो नहीं हो सकता, ये ऐसे चला जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा बैक कैलकुलेशन करते करते, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा ये। आप इसको जीरो कर दे रहे हैं, जीरो पॉसिबल नहीं है। क्या समझ गए बात? इज दैट अंडरस्टूड? अगर ये चीज छोटी सी समझ गए तो फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे फटाक से, हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो फिर कैसे यहां तक तो पहुंच गए, हम गैलेक्सी बना दिए ना, गैलेक्सी तक बना दिए, बिग बैंग हो गया, फिर क्या हो गया भाई, बिग बैंग के बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन के बाद क्या हुआ भाई, ये पार्टिकल्स वगैरह बनने शुरू हो गए, पार्टिकल वगैरह बनने के बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब मतलब बन गए, उसके बाद माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन निकल गया, उसके बाद डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर ये हो गया, ठीक है, एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन इस बीच हो गया, उसके बाद शुरू हुआ कि गैलेक्सीज जो है उनका निर्माण वगैरह शुरू हो गया, फाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन भी हुआ इसमें, नाभिकीय संलयन वगैरह वो सब हुआ, एनर्जी उससे बनी, एनर्जी से मैटर, मैटर से ये सब हुआ, फिर क्या शुरू हो गया, गैलेक्सीज जो है वो बननी प्रारंभ हो गई। ठीक बात है, गैलेक्सीज बन गई, अब आगे क्या होता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। आप सब जानते हैं कि इसको स्टेलर नेबुला बोलते हैं, ठीक है, नेबुला तो मैं पिछली बार भी बताया था, देखा होगा, यही नेबुला है, डस्ट और गैस का एक बहुत बड़ा बादल जिसे कहते हैं, ठीक है, कॉस्मिक बादल जिसे कहते हैं नेबुला। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, दोनों जान लीजिए, अगर एवरेज बहुत बड़े साइज के स्टार्स बनते हैं उससे, ठीक है, तो, और एवरेज साइज के स्टार्स बनते हैं तो, ये ऐसी दो परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक, ये यूनिवर्स में जितने तरह के स्टार्स बनते हैं उसकी बात हो रही है। एवरेज स्टार मतलब हमारा सूरज वगैरह, जैसे हमारा सन है, ठीक है, और मैसिव स्टार बनते हैं, अगर ये बना तो उसकी गति अलग होगी, ये बना तो उसके आगे का भविष्य अलग होगा। मैसिव स्टार अगर बनता है तो वो आगे चलकर रेड सुपर जायंट का रूप ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद सुपरनोवा इवेंट होता है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। ये नेबुला है जिसको नर्सरी कहा जाता है, तारों को पैदा करने वाली नर्सरी, बगीचा, ठीक है। तो नेबुला जो है, इन्हीं में स्टार्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री है समझो ये। तो दो तरह का प्रोडक्ट बन सकता है जनरली, एवरेज साइज का स्टार और मैसिव साइज का स्टार। अगर मैसिव साइज का स्टार बना तो आगे चलकर रेड सुपर जायंट होके और फिर सुपरनोवा इवेंट होगा इसमें, ठीक है, और उसके बाद इनके आगे का दो भविष्य हो सकता है, या तो ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा ब्लैक होल, या फिर छोटा सा जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेगा ये, ठीक। दीज आर द टू पॉसिबल फेट्स फॉर some star that starts as a massive star। याद रखना इस चीज को, अगर मैसिव स्टार के रूप में जन्म लिया है तो अगली स्टेज उसकी रेड सुपर जायंट है, उसकी अगली स्टेज सुपरनोवा है, और उसके बाद दो में से कोई एक घटना ये हो संभव है, ब्लैक होल में या तो परिवर्तित हो जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर एवरेज स्टार का रूप लिया है इसने, तब इसकी जो है आगे की जर्नी अलग होती है, तब ये सुपर जायंट नहीं सिर्फ रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट बनने के बाद इसमें प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इससे प्लैनेट्स का निर्माण हो सकेगा। ये प्लैनेट्स का निर्माण नहीं करेगा, ये सुपरनोवा फट जाएगा, ये प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण करेगा, और अंततः जाते 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 ये इसका अंत व्हाइट ड्वार्फ के रूप में होगा। फाइन, नाम से परिचय बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जाने रहो कि सब बातें क्या कही जा रहे हैं, रेड सुपर जायंट, रेड जायंट, सुपरनोवा इवेंट, व्हाइट ड्वार्फ, साफ साफ है ये सितारों के जीवन चक्र की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। ओके, अब इसको भी एक्सप्लेन कैसे करें कि कैसे बन गए भाई, वहां तक तो ठीक है, गैलेक्सी वैलेक्सी, अब गैलेक्सी से आगे जो घटना हुई है वो कैसे समझा जाए। गैलेक्सी तो बना दिया आप बिग बैंग से, अब गैलेक्सी से जो आज हम धरती पर रह रहे हैं ये सब कैसे हो गया भाई, इसकी भी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो कहा गया कि ऐसे ही जैसे बाकी सब हुआ है, गैलेक्सीज जो है, व्हाट्स रॉन्ग,
नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी जो है गैलेक्सीज भी ऐसे ही नेबुला से शुरुआत होती है उनकी। नेबुला जब गैस और डस्ट के पार्टिकल्स इतने मैसिव हो जाते हैं तो फिर वो या तो स्वयं से या कहीं आसपास सुपरनोवा इवेंट कोई हुआ हो, ध्यान से समझो, इसमें सुपरनोवा नहीं हो रहा है, कहीं आसपास सुपरनोवा इवेंट हुआ हो, उसकी जो शॉक वेव्स होती हैं, शॉक वेव्स, उस शॉक वेव से ये अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है उसी तरह। ठीक, अपने ऊपर यही जब कोलैप्स कर जाता है तो धीरे धीरे फिर ये स्पिनिंग, एक स्पिनिंग डस्ट डिस्क की तरह बन जाता है। उसका जो सेंटर होता है वो उस सोलर सिस्टम का अपना सूरज बन जाता है। ठीक, सबसे पहले वही बनता है। उसके चारों तरफ के जो है वो नाचते रहते हैं, चिपकते चिपकते टूटते, चिपकते टूटते, धीरे 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 करके इस घटना को एक्रीशन कहते हैं। एक्रीशन, एक के बाद एक जुड़ता जाए, उस पर जुड़ता जाए, उस पर, ठीक है, इसको एक्रीशन कहा जाता है। चुंबक याद है? चुंबक, हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, जो रेडियो ऑडियो का स्पीकर था उसे चुंबक निकाल के जो है उसमें जो लोहार होते हैं ना, लोहार, कुछ लोग जानते होंगे, लोहार जो होते हैं हमारे साथी, उनके उस पर ले जाइए, अगर जहां पर वो काम करते हैं उस जगह पर अगर आप ले जाएं तो क्या होगा कि सारा जो वो है उनका जो चूरा जैसा जब नहीं होता है, जो लोहे पर काम करोगे तो बहुत सारा चूरा चूरा पड़ा होगा, तो चुंबक ले जाइएगा तो खटखट 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 चिपक जाएंगे और वो वैसा बन जाता है जिसे कहते हैं भालू जैसा। ठीक है, सारे जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो खड़े हो जाते हैं चुंबक के चारों ओर चिपक के। ऐसे ही थोड़े बहुत ऐसे एनालॉजी के लिए, समझाने के लिए कि एक्रेशन है कि मटेरियल उसके चिपकता जाता है, बढ़ता जाता है, चिपकता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, लोहे बुरादा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। ठीक, तो एक्रेशन के थ्रू फिर प्लैनेट्स जो है वो बनते जाते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, क्लाउड कोलैप्स ऑन इट इन इटसेल्फ। थर्ड थिंग दैट हैपेंस इज डिस्क बन जाती है उसकी, फ्लैट, क्योंकि कोलैप्स कर गया ना, तो वो 3D स्पेस के बजाय लगभग 2D जैसा, 2D नहीं कहेंगे लेकिन 2D जैसा हो गया, डिस्क बन गया। जो ऐसा गोला बादल था वो कोलैप्स होने के बाद वो डिस्क जैसा बन जाता है। ठीक है, और इस स्पिनिंग के कारण वो डिस्क जैसा बनता ही रहता है, बना ही रहता है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें, नाभिकीय जो है वो फ्यूजन, ठीक है, आपस में जो भी मिल जाना जिन्हें कहते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वही एनर्जी का सोर्स हो जाता है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और हीलियम आप जानते ही हैं, कन्वर्जन जो है इनका वही उस सूरज का निर्माण कर देता है। सूरज का निर्माण बीच में हो गया, उसके बाद देखो 98.8% इस पूरा जो मसाला है ये इसका 98.8% सूरज ही है, सूरज के ही बनने में खप जाता है वो सारा मसाला। 0.2% जैसा बाहर बचता है, उसी से बाकी सब का निर्माण होता है, अगल बगल के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, आइसी एंड गैसियस प्लैनेट्स कुड नॉट सर्वाइव नियर द सन। यस, एब्सोल्युटली, आप सोच कर देख लीजिए भाई कि जो मजबूत होंगे वो उसके चारों चक्कर काटते रहेंगे, और जो नहीं होंगे, जो आइस के बने हुए हैं या गैस के बने हुए हैं, वो दूर तक फैल जाएंगे। सिंपल सी बात है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते सूरज के जो है आसपास प्रॉक्सिमिटी में। तो उसका क्या क्या होगा, कैसे कंडेंसेशन होगा मटेरियल्स का? देखो, सूरज से दूर जाते हुए, अब सूरज बन गया है, सूरज से दूर जाते हुए के क्रम में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर घटता जाएगा, 1500 केल्विन, 1000, 500, और एक जगह मान लीजिए 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेसिस है। कैसे बन जाता है, कैसे डिसाइड होता है कि सूरज के बाद पहला बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, ये कैसे हो रहा है सब? इनके कॉम्पोजिशन में कोई ऐसा पैटर्न है? तो यही होता भी है। सबसे जो पहले सूरज के सबसे करीब कंडेंसेशन पे है ना ये, कि कौन सी चीज जो है वो ठोस हो जाए, इतने टेम्परेचर पर भी ठोस हो जाए तो वो यहां पर ठोस बन के नाचेगा। जो इस टेम्परेचर पे ठोस हो सकता है वो यहां पर प्लेनेट बन जाएगा। ऐसे करते 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 यही तो होगा। कोई अपना ठोस स्वरूप कहां पर ले पाएगा, किस माहौल में ले सकता है, वही उसकी दूरी डिसाइड कर देता है। ये बात सिंपल सा नहीं है। नहीं तो बाकी जो है, अगर आप गैस के हैं, आप ठोस होने का आपका पॉसिबिलिटी ही नहीं, तो आप बहुत दूर रहेंगे। और जो ठोस है, सॉलिड है एकदम, डेंसिटी जिसकी खूब ज्यादा है, वो सिंपल सी बात है, ठीक बात है। और ग्रेविटेशनल जो पुल भी है। तो भाई देखिए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स, मेटल वाले जो होंगे वो पहले आएंगे, सिंपल सी बात है, और जो ऑर्गेनिक टाइप के होंगे वो उस तरफ आएंगे, देखना अभी। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स,
आयरन और निकल के जो मटेरियल्स हैं वो सिलिकेट के मटेरियल, सिलिका वाले, फिर आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट ये यहाँ बीच में आ जाएंगे, फिर आयरन सल्फाइड इधर आ जाएगा, हाइड्रेटेड मटेरियल जिनमें पानी ज्यादा है, पानी पानी H2O जो है, मॉलिक्यूलर H2O जो है जुड़ा हुआ है, फिर उससे भी दूर पानी, अमोनिया, मेथेन, वहां पर कंडेंस तभी तो होगा, ऐसी सिंपल सी बात नहीं है, नहीं तो गैस और लिक्विड के रूप में नहीं रहेगा यहाँ पानी। अगर ठोस बनना है तो उधर जाना पड़ेगा ना, जीरो की तरफ ना, ऐसे समझो इसको, सिंपल सी बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं रह सकता ठोस रूप में, उसको बाहर खिसकता जाएगा वो पीछे, और क्या, सिंपल सी बात है। जो यहाँ ठोस रह सकता है वो यहाँ ठोस बन के उसके चारों का प्लेनेट बन जाएगा, ऐसे जिसका जैसा नंबर आवे, बहुत ही सिंपल है। समझ गए इस बात को, एकदम क्लियर है कि कौन कहां कंडेंस हो सकता है, जो कंडेंसेशन पॉइंट उसका क्या है, उसी के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट समाचार है आपके लिए, बहुत लेटेस्ट जो बातचीत हो रही है उस पर, उसके आधार पर बता रहा हूं कि जो सूरज से दूरी जब बढ़ती है तो एक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक ऑब्जर्वेशन मिला कि सूरज के आसपास, देखो कॉन्ड्राइट, इन सब टेक्निकल शब्दों से बहुत डरिएगा मत। कॉन्ड्राइट का अर्थ हुआ ऐसी रॉक जो उसी समय की हो, इस समय की, जब वो बादल था और वो जो है वो कोलैप्स हो गया और फिर रॉक्स में वो सब चक्कर काटने लगे, यानी उस समय की रॉक हो, वही मसाला। कॉन्ड्राइट का मतलब उस समय का जो चट्टान है, उसी समय की जो चट्टान है। तो जो कॉन्ड्राइट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक, बहुत आसान शब्द में समझा देता हूं मैं, एक वो जो सूरज के आसपास रह के, सूरज के आसपास कह लीजिए, या ये जो सूरज के बनने की प्रक्रिया थी उसमें इतना उनके ऊपर थपेड़े पड़ चुके हैं, इतना वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि वो अब वो नहीं है जो पहले थे। और जो बाहर की तरफ थे गैलेक्सी, इसमें सोलर सिस्टम में जो बाहर की तरफ थे वो थोड़ा बचे रहेंगे, है कि नहीं है। जो उसके बहुत नजदीक थे वो पूरा झुलस जाएंगे एक तरह से कह लीजिए, तो थर्मल जो है वो मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा उनमें टेम्परेचर की वजह से, और जो बाहर बाहर ही बने रह गए वो शायद थोड़ा बचे रह जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो जो एंस्टेटाइट एक मैग्नीशियम का जो है वो कंपाउंड होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। दो तरह के ऐसे रॉक्स जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं, दो तरह के। एक जो बदल चुके हैं उसी के कारण, उस बीचों बीच के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे इसलिए वो बदल चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं, थर्मल इनमें एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरा उनका सब कुछ बदल चुका है, कंपोजिशन जो है वो, ठीक है, फिजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो दे हैव अंडरगॉन ग्रेट थर्मल मेटामॉर्फोसिस, और वो मैग्नीशियम और सिलिकॉन यानी मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं, एक सिंपल पॉइंट बताने के लिए कि ऐसा देखा गया है कि सूर्य से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो यहां इसके अंदर कौन से 4 प्लेनेट होते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एस्टेरॉइड बेल्ट है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर 4 कौन से होते हैं और बाहर कौन से होते हैं, इतना तो जानते होंगे। अब 4 बोल दिया तब भी ना बता पाओ तो बेकार है। लिखो चैट बॉक्स में भाई। इनर बोलते हैं ना, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स 4 होते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अच्छा ठीक है। और यहां पर बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, 4 उधर 4 इधर। ये देखा गया है कि इस बेल्ट में यहां पर अधिकता होती है इस तरह के रॉक्स की, और इधर जब आगे बढ़ते हैं आप तो आधिक्य होता है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स की। यहां पर किसकी अधिकता होगी, मैग्नीशियम एंस्टेटाइट की, यहां पर कार्बन की। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो है ना। क्या ये बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के नहीं है ये, बताओ। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो है। तो यानी ऑक्सीजन की जहां अधिकता ऑक्सीजन की है वो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है कि नहीं है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। बस सिंपल सा ही पॉइंट बताना चाह रहे थे कि 2 तरह की चट्टानों की अधिकता होती है। जो चट्टान इधर ज्यादा अधिकता में पाई जा रही है उसमें पानी पाए जाने की गुंजाइश बहुत कम है। थ्योरीज है इस पर, लेकिन बता रहा हूं इधर, और इधर ज्यादा है पानी पाए जाने की गुंजाइश। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी जीवन का निर्माण करने वाले जितने भी तत्व हैं उनका आधिक्य इधर देखा जा रहा है। ये स्थिति देख लीजिए।
तो बोले ये कैसे संभव है भाई, हम लोग तो यहाँ है ना, इसमें है। समझे बात? तो जीवन की उत्पत्ति करने वाले जो भी एलिमेंट्स है वो यहां कैसे पहुंच गए फिर? यही गेम है। ठीक, और आगे आगे आपको बता देगा, अभी खाली समझते चलिए। तो इससे पहले वाले में हमने क्या सीखा था, इससे पहले की स्लाइड में हमने क्या सीखा था कि अलग अलग तरह के जो कंपाउंड्स हैं अलग अलग दूरी पर जाके कंडेंस होते हैं, और इसलिए देख लो ये तो दूर जाके वाटर, अमोनिया, मेथेन, ये सब उधर जाके होंगे ना, बाहर की तरफ होंगे, और हम यहां कहीं हैं बिच्चे में। ठीक, अभी देखेंगे, वो भी देखेंगे। और दूसरी चीज क्या बताई कि वो तो ठीक है, आप टेम्परेचर के हिसाब से कंडेंसेशन तो आपने बता ही दिया। एक ये भी सीख लीजिए कि इधर जिस प्रकार की चट्टानों की बहुतायत पाई गई है, जो मटेरियल है वो वही वाला मटेरियल है जो झुलसा हुआ पड़ा है, जिसमें जो एकदम राख हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर उस तरह का मटेरियल ज्यादा पाया जाता है जिसमें पानी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो अब एक मिस्ट्री आ गई कि नहीं सामने, प्रश्न उठ गया कि नहीं कि फिर ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे पॉसिबल है भला? तो हम लोग तो जीवन इधर है इसी चीज की, ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं बस। तो 5 मिनट में हो गया, कोई ज्यादा तो आपको हमने परेशान किया नहीं, आगे बढ़ जाइए। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अभी अभी इसको वहां पर छोड़ दीजिए, अब ये जल्दी से देख लीजिए कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत फटाफट। ये दोनों तरह के, इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स दोनों अलग अलग तरह से निर्मित होते हैं। ठीक, इसलिए कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखो, वही ग्रेन्स, जो धुआं और जो बादल है, वो धूल और कणों का जो बादल है, उसके जो ग्रेन्स हैं वो आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, छोटे छोटे करके थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक, उसको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं, जो आगे चल के प्लैनेट बनाएगा, प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स जो होते हैं वो जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो अगला स्टेज जो कहलाता है, थोड़ा और बड़ा हो गया, प्रोटोप्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत आराम से सुनिएगा, कि सारे जो टुकड़े हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है कि सारे टुकड़े हैं वो सबका सब कोई ऐसा इंटेलिजेंट हमारे तरह आदमी या आपके हमारे की तरह कोई वो इकोनॉमी इंश्योर करने वाला तो बैठा नहीं है कि जो है एक भी टुकड़ा बेकार नहीं जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा होती है वो प्रोसेस। प्लैनेटेसिमल्स पड़े हैं, हजार टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उनमें से 500 हो सकता है आपस में मिलकर इतना बड़ा हो जाए कि वो आगे प्लैनेट बन गए, बाकी 500 ऐसे नाचते रहेंगे। सिंपल सी बात है। बाकी का जो है कह लीजिए कि अनयूज मटेरियल रहेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अनयूज मटेरियल भी रहेगा। तो याद रखना, वो प्लैनेटेसिमल्स जो आगे जाकर प्लैनेट बनाने की प्रक्रिया में नहीं हिस्सा ले पाते हैं, बाहर रह जाते हैं, वही एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बन जाते हैं। फाइन है, वो वही मटेरियल, लेकिन वो प्लैनेट नहीं बन पाए तो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के रूप में वो आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं। फाइन, अब जो इस प्रक्रिया में शामिल हो गए वो प्रोटो प्लैनेट्स कहलाते हैं। और जैसे जैसे ये जुड़ते जाते हैं, याद रखना, जैसे जैसे गोला बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका ग्रेविटेशनल पुल भी तेज होता जाएगा, गुरुत्व बल उसका तेज होता जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा गोला है, उससे फटाफट लोग चिपकते जाएंगे, स्पीड से आते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्पीड से आते जाएंगे और उसमें चिपकते जाएंगे। यह स्पीड एक नुकसान लेकर आती है, आपका साइज तो बड़ा होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी और इसलिए आने वाले की स्पीड बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगा, लेकिन नुकसान क्या है कि तेजी से आने वाले जो गतिज ऊर्जा आके टकराएगी आपसे, तो फिर वो हीट पैदा करेगी, गर्मी पैदा करेगी। और हीट इतनी ज्यादा हो जाती है, लड़ता जाएगा कि अंदर तक घुस घुस के पेनिट्रेट करके, उसको इंट्रूड करके पूरे प्लेनेट को गर्म कर देता है। तो पूरा प्लेनेट का जो रॉक सिस्टम है बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट गर्म कर देता है। तो जो सॉलिड टुकड़ों के जुड़ने से जो बात शुरू हुई थी वो फिर से लिक्विड हो जाता है, मॉल्टन। पूरा का पूरा प्लेनेट जो है उसका आउटर जो है वो पूरा आउटर ही क्यों, पूरा टेम्परेचर हाई, उसका हीट जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस प्लेनेट को बनाने वाली जो चट्टाने हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके बियॉन्ड गर्म कर देते हैं इसे। और तब क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हम ये चारों की बात कर रहे हैं उनका निर्माण ऐसे होता है कि प्लैनेटेसिमल्स, प्रोटोप्लैनेट्स चिपकना शुरू किए, वो इतना गर्म कर देंगे कि वो पूरा पिघल जाएगा, मॉल्टन जैसा हो जाएगा। और मॉल्टन हो जाने पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या है वो? कि जब वो मॉल्टन हो जाएगा तो मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा, अंदर बाहर का मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं?
अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो टुकड़े जो है, या टुकड़ा तो रह ही नहीं गया, लिक्विड हो गया, तो लिक्विड जो है वो उसके नाभिक और उसके बाहर फ्लूइड हो गया ना पूरा, मॉल्टन हो जाने की वजह से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अर्थ इस संदर्भ में यह है कि जो गोला पहले ठोस था वो जब लिक्विड मॉल्टन जैसा हो गया, तो जो भारी भारी मेटल्स हैं वो सब तलछटी में चले गए। तो तलछटी कहाँ है? घूमते हुए गोले की तलछटी कहाँ है? उसका केंद्र। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि अर्थ की जो कोर है वो किन मेटल से बनी हुई है, फिर उसके ऊपर मैंटल किससे बनी हुई है, फिर क्रस्ट किससे बना हुआ है। आप समझ में आ रहा है कि ये कैसे पहुंच गया होगा नीचे सब? अंडरस्टूड? तो इस तरह से जब वो इस स्टेज में पहुंचती है और उसको डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग जो है वो सतहें बन जाती हैं कि हाँ तुम सबसे भारी हो, तुम नीचे चले गए, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, इस तरह से। ये इस घटना के दौरान होता है। अभी भी कहते हैं ना कि अभी भी जो है ये अंदर गर्मी हम जो है वो मौजूद है। तो ये जो है जब छोटे छोटे दाने इकट्ठा हो रहे हो पहली पहली बार, वो कंडेंसेशन। बड़े बड़े दाने मिलकर थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, वो एक्रीशन। और जब ये घटना हो जाए जो अभी अभी बताई, वो डिफरेंशिएशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के बनने में। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे जो ठोस हैं, जो रॉक्स के प्रॉपरली बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा किस तरह का निर्माण होगा, आप ध्यान रखना। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो नजदीक होगा और जो दूर जाएगा वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो किस चीज का बना हुआ है। अगर आप बर्फ वरफ आइस वाइस के बने हो तो वहां थोड़े आप ठहर पाएंगे, आप दूर जाके सेटल होंगे, आपका डेंसिटी ग्रेडियंट वो बनेगा, आप वहां कंडेंस होंगे। तो ये बाहर वाले देखो, अब आउटर प्लैनेट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ रॉक्स नहीं है, आइस भी है। बहुत मेजर पोर्शन आइस का भी होता है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन। तो वो दूर जाके कंडेंस होते हैं और इसीलिए वो खूब दूर है तो खूब ज्यादा बनते जाते हैं वो। ठीक है। आइस और रॉक दोनों उनको लिए उपलब्ध है रॉ मटेरियल के तौर पे, तो उनको साइज का कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन साइज जितनी बड़ी होगी गुरुत्व उतना ही अधिक होगा। तो गुरुत्व जब ज्यादा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है दोस्त, कि जो गैसेस हैं वो भी चिपकी हुई रहती हैं, उनको भी खींच लेता है ये गैस, गैस को भी अंदर खींच लेता है। ग्रेविटी इतना स्ट्रांग हो जाती है इन सभी इन तरह के प्लैनेट्स की जो बाहर की तरफ कंडेंस हो रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जब ये कंडेंसेशन स्ट्रांग होता है तो वो अपने ही आप पे जो है गैसेस जो है वो कोलैप्स हो जाती है अंदर न्यूक्लियस की तरफ, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सब कुछ। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के रिलीज की वजह से ये गर्म हो जाते हैं, हीट इनमें आती है। लेकिन इनके जैसी नहीं, ये यही अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। हीट बनती है वहां पे, वहां भी हीट पैदा होती है, लेकिन वैसी हीट नहीं जो कि जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन चालू कर दे। नहीं, उस लेवल की हीट जो है वो नहीं हो पाती है उनमें। तो कुछ समय तक ये हजारों साल तक कह लीजिए ग्लो करते हैं, उसके बाद शांत होते जाते हैं धीरे धीरे। तो बृहस्पति है, शनि महाराज हैं, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो हीट होती है लेकिन इतनी हीट नहीं होती है कि न्यूक्लियर का चेन रिएक्शन जैसा शुरू कर दे। ठीक है। तो वो शांति से धीरे धीरे हो जाते हैं। और इन्हीं प्लैनेट्स को, क्योंकि ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इनका जो कॉम्पोजिशन हुआ वो एक तरह से वैसा ही हुआ जैसे कि सूरज जो गैलेक्सी का था। जब हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है तो सूरज जैसा नहीं हो गया। तो यस, ये बात सही है कि ये आउटर प्लैनेट्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत सिमिलर होता है ओरिजिनल के। तो ओरिजिनल में हाइड्रोजन हीलियम था, जो बदले हैं तो ये लोग बदले हैं ना, ये मैग्नीशियम, सिलिकेट, ये सब वहां ज्यादातर वही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब जहां तक मुझे ध्यान है 75% जैसा हाइड्रोजन और 25% हीलियम, इस तरह का वहां हालत होता है। ठीक, बात को समझे। ये गैस, इनको गैस जायंट्स क्यों कहते हैं? रमाकांत, यहां डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा। डिफरेंशिएशन बहुत बहुत प्रिमिटिव टाइप का ही होगा ना, थोड़ा बहुत जो अदला बदली होगी। वो तो डेंस मटेरियल है, उसने खींच लिया। उस लेवल का हीट जो है यहाँ जाओ, जो लेवल की हीट यहाँ होती है मोल्टन कर दे जो पूरे को, वैसा वहां नहीं होता है। दैट्स वाई।
क्या पूछे थे? इनको गैस जायंट्स क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं, पहले ही बताओ। सुने हो कभी कि इनको जायंट्स बोला जाता है? जो चार ठो बाहर वाले हैं, गैस जायंट्स क्यों बोलते हैं, स्पेशली जुपिटर और सैटर्न को? गैसियस प्लेनेट, यस सुना है, ओके। लार्ज साइज, तो लार्ज साइज का गैस से क्या लेना देना भाई? मैंक बोलता है कि मेड अप ऑफ गैसेस मेजरली, इंटरनल टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, देखो एकदम बेसिक है तो और गलती नहीं है। नहीं नहीं रत्नेश, अरे बहुत धोखा है भाई। देखिए कैसे गलती कर जाते हैं आदमी को। ये एक टेंडेंसी होती है ना कि वो सामने वाले को भी अपने चश्मे से देखता है। ये परेशानी होती है। जैसे हम उसको बोलते हैं कि, एग्जाम्पल बता रहे हैं तुम्हें, कि हम लोग कोई लबड़ा लबड़ा समझते हो ना, लेफ्ट हैंडेड समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंडेड कोई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीधा हाथ और उल्टा हाथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये उल्टे हाथ से काम करता है। ये सुने हो कि नहीं सुने हो कभी? अगर कोई लेफ्ट हैंडेड हो, लेफ्टी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कि ये उल्टे हाथ से काम करते हैं। अरे तुम्हारी तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम कैसे उसको उल्टा हाथ बोल रहे हो भाई? उसके लिए तो सीधा ही हाथ है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम उसको उल्टा हाथ क्या बोल रहे हो? यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अपने चश्मे से जो हमारी डेफिनेशन है वही हम लगाते जाते हैं, चाहे बात सामने वाले का अपना डेफिनेशन सही हो। दैट इज द प्रॉब्लम। सेम इज हियर। दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मेजोरिटी वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं। और हमारे यहाँ धरती पर हाइड्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज अ गैस ना भाई। धरती पे हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन इज अ गैस। लेकिन समझदारी की मतलब समझने वाली बात यह है कि वो हाइड्रोजन वहां है तो, लेकिन गैस के रूप में नहीं है, लिक्विड है, लिक्विफाइड हो जाता है वो प्रेशर में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में और कॉन्ट्रैक्शन में लिक्विड के रूप में होता है। तो दे शुड बी एक्चुअली कॉल्ड लिक्विड प्लैनेट्स, नॉट गैसियस प्लैनेट्स। दैट्स अ मिसनॉमर, दैट्स अ रॉन्ग आई मीन टाइटल, जानने रहिएगा। जस्ट बिकॉज हम उनको गैस यहाँ गैस के रूप में देखते हैं, इसलिए हम वहां भी बताए हुए हैं कि नहीं गैस ही है। दैट्स रॉन्ग। ठीक है, इस बात को समझ गया। इस प्रकार से फाइनली आप चीज को देख सकते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक, ये हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, और ये सो कॉल्ड गैस जायंट्स, लिक्विड जायंट्स कहिए उनको, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून। ये चार जो है, यही इनका स्ट्रक्चर है। ये एक स्लाइड है, आप लोगों को जब मिलेगा पीडीएफ तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट एक पॉइंट बता के तब आपको छोड़ते हैं। अब जब आप समझ गए हैं ग्रेडियंट को, तो 2 मिनट ही लगेगा इस चीज में। ये जो ग्रेडियंट है, सूर्य से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं सोलर सिस्टम में, तो एक ग्रेडियंट, एक प्रवणता आती है, टेम्परेचर की आती है, कौन सा मटेरियल कहाँ कंडेंस हो रहा है उसकी आती है, किस प्रकार के रॉक्स की का बाहुल्य है उसकी आती है कि नहीं? अभी देखा आपने कि इधर जो है वो दूसरे टाइप के हैं, और उधर जो ऑर्गेनिक वाले हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रेशन वाले सारे हैं। इसी प्रकार जो, अब आप अगर समझते हैं अच्छे से, तो क्या यह बात आपके लिए क्लियर नहीं है कि जो खोज हम लोग करते हैं, मान लीजिए मैं और आप, हम सबको जिम्मेदारी दी जाए कि आपको जो है वो ब्रह्मांड में जीवन की खोज करनी है, ठीक है, जीवन की खोज, तो पहला फिल्टर क्या लगाओगे कि यहां तो देखने का कोई फायदा ही नहीं है? बताओ। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम कॉमन सेंस। काहे बोला कि बुध पे देखने का कोई फायदा नहीं है? क्यों बोला? यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। और बाहर चले जाओ, यूनिवर्स से बाहर चले जाओ, कोई दूसरी, मान लो दूसरा सोलर सिस्टम मिल गया, तो जो दूसरा सोलर सिस्टम होगा उसमें क्या सब पर जा जाके देखोगे? इतना पैसा, इतना पेट्रोल डीजल या जो भी ईंधन लगता है, वो नहीं हो, समय नहीं हो, तो अगर लिमिटेड टाइम हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो व्हाट वुड यू लाइक टू रूल आउट कि आई डोंट हैव टू लुक हियर? ऑक्सीजन तो वहां जाके पता चलेगा ना, वाटर वहां जाके पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, पकड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। यस, डिस्टेंस फ्रॉम द सन बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या देखेंगे कि हमको बाकी कुछ नहीं मालूम हो या ना हो, लेकिन यह बात तो मालूम ही है ना
कि जीवन कितने टेम्परेचर पे पनप सकता है, संभावना कितनी है, एक रेंज तो मालूम ही है ना भाई, कि इससे ऊपर जीवन नहीं पनप सकता। भाई उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टेम्परेचर, जीवन पनपने के लिए क्या जरूरी है कि H2O यानी पानी पानी के रूप में रह सके भाई, जिस प्रकार रहता है भाई पानी उस रूप में रह सके। ठीक है, जो जीवन के को बनाने वाले तत्व हैं वो अपने ठोस या गैस या जिस भी रूप में एटमॉस्फेयर रह सके, ये सब यही तो है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है ना उसमें। तो एक लाइन तो खींच ही सकते हैं हम ना, कि अगर इस जोन का टेम्परेचर इससे ऊपर है या इससे नीचे है तो यहाँ जिंदगी नहीं होगी, तो यहाँ फर्जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज अ प्रिलिमिनरी दिस थिंग फिल्टर वी कैन डू दैट, और दैट्स व्हाट इट इज बीइंग टोल्ड है। देयर इज अ जोन जिसके इधर गर्मी अधिक के होने की वजह से जीवन पाए जाने की संभावना नहीं है, और जिसके इधर ठंडी बहुत ज्यादा होने की वजह से जीवन के पाए जाने की संभावना नहीं है। जो जोन बीच में आता है, जो वीनस के बाद से और मार्स के यहां तक है, इस जोन को हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। कहीं पूछ ले कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो जोन है जहां पर जीवन के पनपने की संभावना होती है, आशा होती है कि हो सकता है यहां पर जीवन हो। और यही जो लाइन है, इसी को स्नो लाइन कहा जाता है। स्नो लाइन की इसके बाद तो पानी द्रव के रूप में होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। अरे ये तो आप समझ रहे होंगे, तो गड़बड़ाना मत। ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि दिन और रात का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। वीनस को देख लो, कितना दिन में कितना गर्म होता है और रात में कितना ठंडा हो जाता है। समझ गए बात? तो मीन टेम्परेचर की एक बात हो रही है। मीन टेम्परेचर जो है उसका इस रेंज में होना चाहिए कि वहां पर पानी अपनी अवस्था में, उस अवस्था में पाया जा सके जो जीवन को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक है। इसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, इसी को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप थर्मोमीटर पर सेट करने पे आ जाइए, कि थर्मोमीटर पर सेट किया जाए, तो आप देखेंगे कि जो अर्थ है वो देखिए यहां पर है 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीचों बीच में अर्थ है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में कह लीजिए 0 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब इसके नीचे देखिए और ऊपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही जा रही है। ठीक है, वीनस है, मरकरी है, सब हाई टेम्परेचर वाले हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पास में मरकरी है लेकिन दूर वीनस है, फिर भी वीनस ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? मीन टेम्परेचर उसका ज्यादा। ठीक है, फिर मार्स हो गया, उसके बाद जो अब ठंडा वाला शुरू हो गया सब, -100। ठीक है, फिर -200, -200, क्योंकि उसका टेम्परेचर का और भी असर पड़ता है ना, एटमॉस्फेयर वगैरह का, गैसियस कंपोजिशन का, बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं उस चीज को। इसलिए तो इस प्रकार हैबिटेबल जोन भी आप समझ गए। आज इसको यहीं पे बंद करेंगे और फिर बाकी के क्लास बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, see everyone in the next session, which may take 2-3 days now. There has been some issue in the family, तो फिर हम लोग आराम से जो है मिलेंगे। 2-3 दिन लग सकते हैं, तब तक आप लोग स्वाध्याय कीजिए और पुरानी वाली जो कक्षाएं हैं उनको देखिए एक बार, जो पिछले साल पढ़ाई गई। ओके, चलिए, जय हिंद।